Good morning, friends. On behalf of Banking Quest, I Tilagulati extend you warm welcome. Friends, today we are starting the pre-promotional online training program for the staff of UCO Bank Kanpur zone and UCO Bank Surat zone. During last weeks, also we had conducted training program for UCO Bank Ahmedabad zone and also concluded two training programs for the staff of Union Bank of India. Friends, Banking Quest has been envisioned by senior level bankers with the sole aim of updating the knowledge of young next generation bankers. We are achieving this objective through the medium of our illustrative website, analytical blogs, trainings, webinars, workshops, articles published in leading financial dailies, and also through our YouTube channel. It gives me immense pleasure to announce that Banking Quest is becoming the first point of reference to all the bankers working in this country and abroad. Friends, it is always our endeavor to provide state of the art training programs to the bankers. We have so far provided training to more than 5,000 bankers. We pride ourselves on our distinctive and differentiated content and delivery with a focus on practical aspects of learning. We work with some of the leading banks in the country to provide effective learning solutions for capacity and competence building. Our vision is to be the most preferred partner in BFSI segment for transformational skill development, enabling organizations and individuals to achieve their goals. Friends, with immense pleasure, I announce that today we have with us Mr. Tilak Bhushan Mehta, General Manager UCO Bank Kanpur, and also Mr. Raman Singh, General Manager UCO Bank Surat. I welcome you both, sirs. I request Mr. Tilak Bhushan Mehta, sir, to kindly formally inaugurate this training program and also say a few words motivating the participants going to appear for the promotional exams. Over to you, Mr. Mehta. Dear friends, good morning. Welcome you all in training program conducted by Banking Quest. This is a pre-promotion training program for all the staff of UCO Bank, particularly for Kanpur zone, Surat zone. Starting from today for 4 days, from 26th January to 30th January. Good banking is produced not by good laws, but by good bankers. So this program will be conducted by senior level bankers from various banks. Mr. Tilakrai Gulati ji, our retired executive, Mr. S.N. Pandey, retired executive from UCO Bank, Mr. K.L. Barga from PNB, and Mr. Lukman Ali from Union Bank, and Ram Kiran Singh, principal staff, सेंट्रल कॉलेज. मैंने लास्ट वीक ही मैंने जो है इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है और आप लोगों ने गुलाटी जी को, रामकिरण जी को, लुकमन अली जी को भी कई बार वेबिनार्स जो कंडक्ट हुए हैं उनमें भी देखा होगा. देयर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड. If you fail to understand anything, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, you can ask them any question on any topic. They are experienced bankers and well versed with latest banking. They will provide you a lot of materials about latest changes in the banking. They will put a lot of materials in your brain, but you will have to digest it. So friends, be punctual, be attentive, listen them carefully, attentively. I wish you all the best. God bless you all with success and promotion. All the best, sir. Thank you, sir.
Thank you, Mehta ji. Thanks a lot for inspiring all the participants and guiding them. तो मेरे को पूरा विश्वास है कि पार्टिसिपेंट्स आपके इन गाइडिंग वर्ड्स से बहुत क्लू लेंगे और आगे जाएंगे, प्रमोशन लेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जोनल मैनेजर सूरत से मिस्टर रमन सिंह जी भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर रमन सिंह जी से काइंडली से फ्यू वर्ड्स एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स। सर, मिस्टर रमन सिंह, वेलकम यू सर। गुड मॉर्निंग गुलाटी साहब। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। रमन सिंह जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। आपका वीडियो ऑफ हो गया सर। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और शायद हमारे जोन के लोग को 3-4 दिनों से 3 डेज हो गया गुलाटी साहब, हमारे जो जुड़े हुए हैं आपके यहाँ। 3 डेज हो गया सर, 3 डेज हो गया उनका जी। तो 3 डेज हो गया है, तो शायद मतलब 3 दिन मतलब क्या कैसा फीडबैक है, मतलब कुछ बता सकते हैं क्या? मिस्टर कपिल भी जुड़े हुए, कौन कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हमारे जोन से। सरदार जी, आप सुन पा रहे थे? आपको कैसा फील हो रहा है गुलाटी साहब का? सब ठीक ठाक लग रहा है? तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बात अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग अच्छा है। हाँ चलिए हाँ नहीं ठीक है, अपने पास में फीडबैक है गुलाटी साहब का अच्छा, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम सर आई वांट टू से समथिंग। मैंने भी गुलाटी साहब का अभी सेशन लगाया तो बिल्कुल एकदम बढ़िया और बिल्कुल लेटेस्ट। जो ये स्लाइड जो बताते हैं ना, बिल्कुल लेटेस्ट है। और हमें उसमें से बैंक एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, पर्टिकुलरली स्केल 1 to स्केल 4 तो मिलेंगे। फीडबैक तो अच्छी बात है। चलिए, मतलब एक टीचर के लिए अभी एज ए टीचर ही हैं, एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू मतलब दे आर सेटिस्फाइड। तो अच्छा है, अभी मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। मतलब मेहता साहब ने अच्छा बोला, जो बैंकिंग के लिए सबसे बड़ी बात है, जो एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ हैं। वन ऑफ द जो अभी यूको बैंक में, जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था, जो एवरेज एज जो 37 ईयर है, तो एक चीज जो मैं जो जोनल मैनेजर लास्ट 2 साल से हूँ यहाँ पोस्टेड, हमारे जोन में और भी काफी यंग लोग हैं। मोस्टली ब्रांच हेड्स जो हैं, दे आर मे बी मोस्ट ऑफ देम आर द फर्स्ट टाइम ब्रांच हेड्स। तो ब्रांच हेड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें कि ओवरऑल मतलब ही इज द सीईओ ऑफ दैट ब्रांच। कुछ ब्रांच को जिस तरह से चलाएंगे, होम लोन करना चाहेंगे, कार लोन करना चाहेंगे, अकाउंट ओपन करना चाहेंगे, जो भी चाहेंगे वही होगा उस ब्रांच में। इफ ही विल बी पॉजिटिव, द branch graph will be positive. If he will be negative, the branch business will come down gradually. तो उनके ऊपर डिपेंड करता है उस ब्रांच का परफॉर्मेंस। हम यहाँ से कितना भी पुश कर लें जोनल ऑफिस से या फिर हेड ऑफिस से, लेकिन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच विल टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांच हेड्स एंड हिज टीम। तो ब्रांच हेड अगर पॉजिटिव होंगे तो काम अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बिकॉज सभी लोग जानते ही हैं, there is nobody in the world who is not having any problem. We all are surrounded by the problems, and leaders are born only when they know how to come out of this situation. तो जिनके पास जितने बड़े challenges हैं, I will rather say, those जितने भी लीडर्स हुए हैं वर्ल्ड में अभी तक, जो भी गांधी जी हों, चाहे नेल्सन मंडेला हों या whosoever, मतलब why they have become a leader or why they have become so successful, बिकॉज उन्होंने अपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे सराउंडिंग्स में, उनको आइडेंटिफाई किया और चैलेंज को लिया। और बिकॉज जितना ही बड़ा प्रॉब्लम था और उसको जिस तरीके से टैकल किया और उससे कम आउट हुए, इसीलिए वो इतने बड़े लीडर बने। तो छोटे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके बड़े लीडर्स नहीं बन सकते। तो ब्रांचेज में ब्रांच हेड्स को भी यही बोलूंगा, वी आर सराउंडेड विद द चैलेंजेस, वी आर सराउंडेड विद द प्रॉब्लम्स, वी आर सराउंडेड विद सो मेनी प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो प्लस विल ऑलवेज हेल्प, निगेटिव पॉइंट्स को अगर आप टेकल आउट कर देंगे तो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल लीडर। तो इसलिए कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो प्लीज डोंट
उसके लिए फियरफुल नहीं होना है, उसके लिए जोनल ऑफिस हम लोग तो हैं ही आपके साथ, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो उसके लिए फियरफुल नहीं होकर के उसको चैलेंज को एज ए पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है, एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, लेट अस नॉट गो इनटू डिस्प्यूट, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे चेक नहीं लग रहे, कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्लियरिंग में प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई दिक्कत आ गया, एटीएम में कुछ प्रॉब्लम हो, लेट अस ट्राई टू, सर अभी ठीक हो जाएगा, लेट अस नॉट गो इनटू डिस्प्यूट, है ना। कस्टमर के साथ कभी भी डिस्प्यूट नहीं करना है। जो एमडी साहब हमेशा बताते हैं, जो अगर सपोज कस्टमर इज कमिंग टू यू विद सो मेनी, मतलब उसका माइंडसेट क्या है वी डोंट नो। सपोज आपके साथ कभी कोई उलझ गया, आके कुछ अल्टर बोल दिया, तो इफ यू आर, आप भी अगर उसको उस तरह से जवाब दोगे तो इट विल टर्न इनटू ए डिस्प्यूट। लेट अस अवॉइड द डिस्प्यूट। आप उसको क्या करिए, अगर आप भी से भी नहीं संभल पा रहा तो यू शिफ्ट कर दीजिए सेकंड मैन पे, थर्ड मैन पे, हुम सो इफ यू फील लाइक कि हमारे यहाँ जो कोई सीनियर मेंबर कैन हैंडल, उनके पास सर आप थोड़ा देख लीजिए, तो क्या आपका जो खराब नहीं होगा, आपका टाइम की मतलब वेस्टेज नहीं होगा। ये मैं 2-3 टिप्स मैं देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। ये 2-3 चीजों ध्यान देंगे तो आपके पास जितनी कम मतलब नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड रहेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आप नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, तो होल द डे विल बी वेरी गुड। एक और चीज मैं अपने ब्रांच हेड्स या स्टाफ मेंबर्स को बोलना चाहूंगा, तो सपोज यू आर कमिंग टू द ब्रांच, इट इज आवर बिजनेस आउटलेट, यू हैव टू प्लान द डे कि आज मुझे क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं आप आकर के आप ब्रांच में बैठ गए, जो काम आएगा करते रहेंगे। जैसे गुलाटी साहब पढ़ाने के लिए आए हैं आपको, तो अभी इन्होंने क्या पूरा दिन का प्लान आउट किया है, आज क्या सेशन लेंगे, किसमें कैसे प्रेजेंट करना है, इनको इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सक्सेसफुल, बिकॉज इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उन्होंने तैयारी की हुई है, और तैयारी करके आपको अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही आप जब भी मतलब सपोज यू आर मूविंग टू, यू हैव स्टार्टेड फॉर द ब्रांच, यू प्लान द डे, व्हाट आर द आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप हम 27 तारीख के मतलब दिन में है, 27th ऑफ दिस मंथ है, सूरत जोन में एसजीएनपीए बहुत सारा आता है, पोटेंशियल एनपीए बोल रहे हैं आजकल। तो आपको मुझे सबसे पहला देखना है जो कुछ चीज एनपीए बॉरोवर्स को हिट करना है, जैसे मुझे जो विजिट करना है या कॉल करना है, या अपने टीम मेंबर सेकंड मैन थर्ड मैन उनको लगा दिया काम में, तो थोड़ा सा आप देख लो, फॉलो कर लो, फोन्स कर लो आप इनको, या फिर विजिट करना है तो अकॉर्डिंगली आप एक दो का मेंबर, 1 or 2 मेंबर्स यू कैन विजिट। सेकेंडली आप कोई लोन्स है, डिसबर्समेंट करना है, मंथ एंड है, प्रेशर रहता है, जो आप टारगेट अचीवमेंट कराता है, तो यू प्लान द डे, you list out the what are the priorities for the today, and you accordingly just give 5 minutes कि क्या क्या मुझे किस प्रायोरिटी में क्या चीजें प्लान करना है आज के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट करिए। आई थिंक प्लानिंग विल हेल्प यू इन सक्सेसफुली रनिंग द ब्रांच। तो ये 2-3 चीजें हैं, avoid the problem by shifting the problems. Sometimes if you are unable to resolve the problems, then you just try to shift it to the experienced person. Second is plan the day, whole day, because सभी लोग हमारे जो जितने भी सूरत जोन में हैं सभी यंग हैं, मोस्टली लास्ट ईयर भी ब्रांच हेड बने हैं, कुछ लोग 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दे आर हैंडलिंग इज वेरी हाई। कुछ ब्रांचेस का एडवांसेस फिगर 100 करोड़ के आसपास है, 70-80 करोड़ के आसपास है हमारी ब्रांचेस की, और स्किल 3 ब्रांच हेड कर रहे हैं। कुछ जगह 25 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ के ऊपर की एडवांसेस का फिगर है। Our only new skill 2 branch heads are handling those business. I am seeing these people are really doing wonderful job. अच्छा काम कर रहे हैं। एनपीए टेकल आउट में भी एनपीए फर्दर स्लिपेज ऑफ एनपीए को भी रोक रहे हैं इस कोरोना के समय में भी। मैं बहुत देख रहा हूँ, दे आर द पोटेंशियल लीडर्स फॉर टुमारो। आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल दोज पीपल, at least those people whom I know, whom I'm on daily basis interacting, I'm seeing their performances on regular basis. The people from the Surat zone really doing excellent job. All the staff members in the branches, not only Surat, गुलाटी साहब पूरे बैंक का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, रिजल्ट इतना अच्छा बैंक का रिजल्ट आया है। All those key parameters में our bank has posted a really profit was, although profit was negligible, 35 crore around only, but you see the parameters, all those parameters, your advance growth, credit growth, deposit growth. You see the NPA, that is one of the challenges as of now. The NPA percentage has really come down to net NPA below 3%, gross NPA less than 10%. Even not only that, capital, for which every time banks are going to the RBI or government
that you infuse some capital. Even government has not given any capital in the recent past. Even though our capital adequacy ratio is quite satisfactory, it is 12% plus. So all those 4 parameters, even the RBI, the PCA parameters, the 4 parameters are excellent now, and it is comparable with any of the PSU as on date. So our bank is really on the right track. Only thing is all those people. Well, that means not only our zone, all the zones. Why this parameter? Bank as a whole, the parameter has come in such a nice figure has come because all the 42 zones. I will rather say all the 23,000 people, they are working together. They are understanding what is the requirement of the bank as of now, and they are working. And due to that, only our bank has been successful in posting the balance sheet in such a wonderful, in a nice way, and such all the parameters are very, very well, and it is really acceptable and really a proud moment for all UCOites. तो सभी लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग मतलब 423,000 पे सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे कानपुर से हो या फिर हमारे सूरत से हो या फिर अहमदाबाद से हैं या फिर किसी भी कॉर्नर से हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर किसी भी कॉर्नर से, ऑल 42 जोन्स के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये कंट्रीब्यूशन सभी का कंटिन्यू रहेगा इन द करंट क्वार्टर, बिकॉज करंट क्वार्टर में कुछ चैलेंजेज हैं सर हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, क्योंकि अभी फिनेकल की ट्रेनिंग चल रही है, अभी ये प्रमोशनल ट्रेनिंग चल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ऑल दो चैलेंजेज हैं। बट मैं श्योर हूं कि ये क्वार्टर जो है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है सर, जो 9 मंथ में वो लोग जो बिजनेस लाते हैं, HDFC बैंक हमारे साथ में ही इसी फ्लोर पे है, मैं इंटरेक्ट करता रहता हूं, उनके हेड हैं, उनका कहना है प्राइवेट बैंक का कंसेप्ट क्या है, जो 9 मंथ में जो बिजनेस किया उन्होंने लास्ट 9 मंथ में, उतने बिजनेस इस करंट क्वार्टर में करते हैं, इवन मोर देन दैट वो बिजनेस ये करंट क्वार्टर में करते हैं। ठीक है, हम उतना शायद नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली दिस क्वार्टर विल बी अनदर सक्सेसफुल क्वार्टर फॉर UCOites। ये जो मैं देख पा रहा हूँ लोग कर रहे हैं, ये इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी हमारा जो सैंक्शनिंग रेट है या NPA स्लिपेज का जो रेक्टिफिकेशन है ऑन डेली बेसिस इज क्वाइट गुड। और सभी लोग इवन दो ट्रेनिंग में हैं फिर भी फोन के थ्रू या जो भी है जिस भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं ब्रांचेस को ऑपरेशन में भी, और हेल्प कर रहे हैं इन लोन्स में भी, NPA कस्टमर को कॉलिंग में भी और SGNPA कस्टमर कॉलिंग में भी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग फ्रॉम इनर साइड, अंदर से उनको फीलिंग आ रही है नहीं बैंक को आगे ले जाना है। ये बहुत अच्छी बात है, ये फीलिंग आ जाएगी तो बैंक को कोई पीछे नहीं ले जा सकता है दोबारा से, वी कैन नॉट बी इन रेड अगेन। तो ये चीजें हैं। और सेकंड चीज है जो मैं चाहता हूं, जो जितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं फॉर द प्रमोशन, वो अच्छे से अच्छे जो अच्छे ट्रेनर हैं हमारे साथ उनसे ट्रेनिंग लें। इवन दो जो इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ कंफ्यूजन है तो इनके नंबर से यू कैन कॉल हिम आउट और व्हाट्सएप हिम सो दैट ही कैन एक्सप्लेन यू आउट, है ना। तो कुछ अगर होगा तो गुलाटी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जो आफ्टर द क्लास ऑल्सो इफ ही कैन हेल्प इफ समबडी पुट सम क्वेरी डेफिनेटली, बिकॉज ये ठीक है हम आपसे जुड़ चुके हैं और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपने साइड से, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं जरूर आपको इनवाइट करूंगा। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि आप इसमें भी बढ़िया से पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके उत्तीर्ण हो अपने क्लासेज में, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें इतना मार्क्स ले आइए। जो गुलाटी साहब का नाम है जो ट्रेनिंग किया है, तो गुलाटी साहब के सारे बच्चे एकदम पास हो गए और बढ़िया नंबर से पास हो गए। तो क्योंकि मैं भी टीचर रहा था तो मेरा जो वहाँ जो पार था, टीचर्स का पार जो जनरेट होता है, टीचर्स के भी पार जनरेट होते हैं। मैं जब भी लेक्चर था कॉलेज में, हमारा पार जो जनरेट होता था उसमें यही काउंट होता था जितने क्लासेज हमने लिए। सपोज मैंने BSc का क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का क्लास लिया, उसमें जो भी सब्जेक्ट लिया उसमें कितने लोग पास हुए, परसेंटेज निकलता था, अकॉर्डिंगली हमारा पार बनता था। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। तो एक टीचर उस समय मुझे बहुत खुशी होती थी, हमारे बच्चे रियली मतलब बोलना नहीं चाहिए खुद के मुंह से, जो हमारे बच्चे पास हो जाते हैं तो टीचर्स के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो गुलाटी साहब से मैं सभी स्टूडेंट्स को बल्कि चैलेंज करूंगा, जो गुलाटी साहब जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब मन से पढ़ें सब लोग और सभी के सभी पास हो जाए। मैं ये कम से कम ये कहूंगा, और कुछ लोग तो टॉप करें, है ना, कुछ लोग तो टॉप करें और ज्यादातर लोग, रेदर आई विल से 100% लोग पास हो जाएं। तो गुलाटी साहब के लिए भी बहुत सम्मान का बात होगा और इनके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। और हमारे जोन या यूको के जितने भी एम्प्लॉय प्रमोट होंगे
एज ए जोनल मैनेजर आई विल बी वेरी हैप्पी कि हमारे जोन से ज्यादा हो, और भी जोन से हो, तो सीट तो काफी सफिशियंट है, लेकिन अब आप ले पाते हो कि नहीं ले पाते, कई बार सीट वैकेंट रह जाती है, तो ऐसा ना हो कि सीट वैकेंट रह जाए, आप सारे के सारे पास करें और सक्सेसफुली मतलब 13th को एग्जाम पास करें फर्स्ट हर्डल बढ़िया मार्क के साथ। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को से विदा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सारी जो मैं आपसे आपके लिए शुभकामनाएं दिया हूं, आप उस पर जो भी आपके लिए पैरामीटर्स रखा हूं मैं आपसे, वो आप सारे पूरा करेंगे, डेफिनेटली पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमन सिंह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमन सिंह जी। बेसिकली अच्छा टीचर तब बनता है जब स्टूडेंट अच्छे हों, स्टूडेंट की वजह से टीचर का नाम होता है। और मैं यही कामना करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स टॉप करें, हमेशा आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम तो हो गया। अब सर रमन सिंह जी, अब क्या है कि हम इस उम्र में पड़ाव में आ चुके हैं कि हमारे को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमें करियर बनाना है, ना हमें मनी बनानी है, ना हमें नाम बनाना है। हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो टॉप करने चाहिए, और कल को कभी भी मिले, कोई भी कहीं भी जाके हम मिलें तो हमारे को एक अच्छी आदर से हमें देखें वो, कि हाँ ये हमारे गुरु हैं और हमें इन्होंने हमें पढ़ाया है। तो मैं सिर्फ यही कामना करता हूँ। हमारे यहाँ से सारे बच्चे हैं जो सारे आउटसाइडर्स हैं, मतलब मोस्टली आउटसाइडर्स हैं, जैसे राजस्थान से हैं जी, बिहार से हैं, उड़ीसा से। आप देखिए आप कितने प्रदेश में पॉपुलर हो जाएंगे अगर ये बच्चे सक्सेसफुल होकर वहाँ स्किल 3-4 में जाते हैं, तो वहां जाके भी आपको याद करेंगे, ठीक है। आपको और पैन इंडिया आप मतलब और पहले से है, आप लोग जानते हैं, लोग ऐसा नहीं है नहीं जानते, लेकिन जो यंगर जनरेशन में जो है आपकी पहचान, आपकी इंस्टीट्यूट की पहचान और भी बढ़ेगी सर। थैंक यू एक्चुअली मैं भी यूको बैंक का ही प्रोडक्ट हूँ, यूको बैंक से रिटायर हुआ था 2017 में। तो उसके बाद मैंने ना कहीं जॉब नहीं करी, मैंने यही टीचिंग का किया। और मैं इस समय जैसे जो मैं बैंकर्स को पढ़ाता हूँ, कई बैंक, सिर्फ यूको बैंक नहीं, बाकी बैंकर्स को भी। अब क्या है कि अदर रिटायरमेंट के बाद ना कोई पहचानता नहीं है, जनरेशन गैप बहुत हो जाती है। अब मैं किसी भी बैंक में कहीं भी जाता हूँ, कोई ना कोई मेरी जान पहचान का मिल जाता है, किसी ने मेरे से पढ़ा हुआ होता है। बहुत अच्छा फील्ड आपने सेलेक्ट किया सर, और आप में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ सर, टीचर में सबसे पहला चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत बढ़िया दिखता है सर आप में। मतलब आई एम वेरी जूनियर टू जज यू आउट, बट लेकिन सर मतलब आप रियली मतलब यू आर प्रेजेंटेबल, यू आर वेरी गुड इन कन्वर्सेशन आल्सो, एंड योर फीडबैक इज वेरी गुड सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। रिगार्डिंग दैट मैं बैलेंस शीट के बारे में 1 मिनट कहना चाहूंगा। यूको बैंक ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है, फिनोमिनल ग्रोथ। तो एक टाइम मुझे याद है जब यूको बैंक को पीसीए में डाल दिया गया था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया गया था, और अब देखिए फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई गई है। तो अच्छा है। और मैं कल इनके साथ जो बैलेंस शीट प्रेजेंट किया अभी, तो मैं कल पार्टिसिपेंट से डिस्कस भी करूंगा, एटलीस्ट बैंकर्स को अपने बैंक की बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं थोड़े मालूम होना चाहिए। तो कल मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा सर। सो नाइस, थैंक यू रमन सिंह जी, थैंक्स ए लॉट फॉर इंस्पायरिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।